Welcome everybody to this new lecture of our solid state physics lecture series. And in today's lecture we will continue our discussion about the vibrations or lattice vibration of a one dimensional monoatomic lattice. और ये इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आई थी, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसे कहा था, और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की हम कोशिश कर रहे थे और इससे कुछ रिजल्ट्स हम लेने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह का हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्सपेक्ट किया था और इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके थे। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने un+1 और un-1 की वैल्यू यहाँ तक निकाली थी। यानी अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो un+1, चूँकि बीटा तो कांस्टेंट है जिसको हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, हुक्स लॉ आपने स्टडी किया हुआ है। तो un+1 हमें चाहिए राइट हैंड साइड को इवेलुएट करने के लिए। un जो ऑलरेडी हमारे पास है, un+1 को हम इवेलुएट कर चुके हैं और un-1 भी हमने इवेलुएट कर लिया है। और कुछ स्पेशल फॉर्म्स आई हैं, इस तरह की फॉर्म्स हैं ये एक्चुअली हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिखा है, चूँकि कुछ ये टर्म्स जो हैं वहाँ कैंसिल होंगी, तो इस वजह से इसको अभी से मॉडिफाइड कर दिया है। u0 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, ये टर्म इस तरह से, और ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियल आयोटा एंड विद माइनस के ए, इसको हमने यहाँ अलग से एक अलग टर्म बना के लिखा है, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए. This is my equation number 3, and in the same way I write here for un-1 the equation number 4, u0 exponential iota omega t minus kna and exponential iota ka. इसको भी इसी फॉर्म में हमने लिखा है। अब राइट हैंड साइड की तो जितनी टर्म्स थी, हमने जितने हमें यहाँ टर्म्स चाहिए थे, un+1 ये वैल्यू मेरे पास है, un की वैल्यू मेरे पास है, un-1 की वैल्यू मेरे पास है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है और लेफ्ट हैंड साइड में क्लियरली आपको दिख रहा है, चूँकि m तो कांस्टेंट है, आइडेंटिकल पार्टिकल जो इक्वल मास के पार्टिकल्स हैं। ये जो टर्म है दैट d2un/dt², ये एक्सेलरेशन वाली टर्म है और क्लियरली मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये un का डबल डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू t, और un मुझे ये वाली इक्वेशन नंबर 2 जो इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करके हम चल रहे हैं, इसको मैं देखता हूं तो ये मुझे un देती है। यानी अगर इक्वेशन नंबर 2 को डबल डिफरेंशिएट कर दिया जाए विद रेस्पेक्ट टू t तो मुझे ये एक्सेलरेशन दे देगा। चूँकि ये आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, दैट इज द टाइम रेट चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, एंड टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ओके, ये ओके, दिस differentiation of this equation, which is equation number 2, with respect to t, first time gives you velocity and second time it gives you acceleration. So let's do this. Now differentiating equation number 2 with respect to t gives you first time velocity, this term dun/dt. Un is the displacement of the nth atom. So if we differentiate this equation with respect to t, then this u0, the maximum displacement is constant, exponential iota kna is behaves like a constant, only the term which with t is iota omega t. So when we try to differentiate this term with respect to t, then after differentiation we have only iota omega, iota d/dx of e to the power x or e to the power 2x. That so first time e to the power 2x is same, and differentiation of 2x gives you 2. In the same way, exponential iota omega t, differentiation this term with respect to t gives you first time the same term, and second the differentiation of this power iota omega t with respect to t gives you iota omega. So when you differentiate this equation number 2 with respect to t, first time it gives you iota omega t here, and second time when you
again differentiate this equation to get the acceleration term, then this term then also gives one extra iota omega t, iota omega only, not t, because t is 1, d by dt of t is 1. That's why we get here, we only get from here is iota omega. Okay, so let us do this work, differentiation of this equation with respect to t. What we get, let's see. This is the first time differentiation, gives you iota omega u naught exponential iota omega t minus kn, same. Again differentiation gives you d2u, and actually here is n d2un by dt square is this. Again differentiation, so gives you again iota omega term, so iota omega square u naught exponential iota omega t minus kna. Okay, and you know that iota square gives you -1, omega square u naught exponential iota omega t minus kna, same term. Okay, so the double differentiation of this term un gives you omega square with minus sign u naught exponential iota omega t minus kna. So let us put the whole result we acquire from this calculation, that is the value of un from equation number 2, the value of un plus 1 from equation number 3, the value of un minus 1 from equation number 4 into the right hand side, and this value d2un by dt square, which gives you the acceleration term into the left hand side of equation number 1. We have this m is already there, this m, so m is already there, the value of d2un by dt square is minus omega square u naught exponential iota omega t minus kna, this, and beta, the force constant, the value of un plus 1, the value 2 multiplied by un, the value of un, and plus the value of un minus 1. And look at here, u naught exponential iota omega t minus kna, u naught exponential iota omega t minus kna, u naught exponential iota omega t minus kna, and u naught exponential iota omega t minus kna. That's why these terms look right in this way. So u naught exponential iota omega t minus kna cancel, first time common, second time cancel with this term onto the right hand side, okay? Onto the left hand side to the right hand side. Okay, so here we are left with minus m omega square equals to beta is same. Here we are left with exponential minus iota ka minus 2 plus iota ka exponential iota k, this term. Okay, and let us rewrite this right hand side in more logical way, that is this positive term exponential iota k first, write it first, minus 2 same, and then minus term, this mathematical only arrangement. Okay, you can see, write the positive term first, write the negative term second, this is the simple mathematical logic. Okay, so this minus m omega square equals to beta exponential iota ka minus 2 plus exponential minus iota ka, ये टर्म हमारे पास आ गई है. अब इस टर्म को हम थोड़ा सा लॉजिकल वे में लिखना चाह रहे हैं, और वे ये है कि आप ऐसा करें कि इस टर्म में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें इस टर्म को. सेम टर्म, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे. यहाँ भी आप ऐसा ही करें, ये जो माइनस वाली टर्म है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए, इस टर्म में भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें ये टर्म. ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये मैंने कैसे लिखा इसको देख लेते हैं. यहाँ -2 है, देखिए 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा. देखिए 2
एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए बाई टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए बाई टू। ओके, अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल एक ही बेस पर हैं तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो ये बचेगा आयोटा के ए बाई टू माइनस आयोटा के ए बाई टू, दोनों कैंसिल, एक्सपोनेंशियल या ई टू द पावर जीरो, जीरो मीन्स वन, तो ये रह जाएगा टू। तो कुल मिला के ये जो एडजस्टमेंट हमने किया है इससे इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ये जो फॉर्म मैंने लिखी है अब भी ये फॉर्म इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। अब भी ये जो फॉर्म हमने यहाँ थोड़ी सी मॉडिफाइड करके लिखी है ये फॉर्म इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। टू से टू कैंसिल, ये आ जाएगा टर्म आपके पास एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए बाई टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए बाई टू गिव्स यू वन, तो ये वाली टर्म आ जाएगी टू मल्टीप्लाइड बाय वन, माइनस टू आ जाएगा आपके पास। और अगेन टू इज कैंसिल विद टू, तो ये वाली टर्म आ जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के, ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, और इस टर्म को क्या हम ये लिख सकते हैं, इस टर्म को क्या हम ये लिख सकते हैं, देखिए एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए बाई टू माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए बाई टू टू द स्क्वायर। कैसे, देखिए इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर में क्या होता है, जब एक्सपोनेंशियल में पावर होती है तो पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो जब इस टू की मल्टीप्लाई यहां होगी तो ये टर्म मिलेगी आपको, इस टू की मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो ये वाली टर्म मिलेगी आपको, फिर इस टू की मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो ये वाली टर्म मिलेगी आपको, और फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल तो ये वाली टर्म मिलेगी आप विद नेगेटिव साइन, चूंकि यहाँ नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव होता। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन है, ये इस तरफ मुझे लेके जा रहा है कि मैं इस टर्म को बीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए माइनस टू प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल बीटा इज सेम एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए बाई टू माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए बाई टू टू द स्क्वायर। तो इस टर्म को ये थोड़ा सा रफ वर्क आप कह सकते हैं इसको, इस टर्म को मैं डायरेक्ट इस टर्म में लिख रहा हूँ। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आपने लिखी कैसे है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे एग्ज़ाम में भी इसी तरह से लिख के आएँ, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या हमने यहाँ मॉडिफिकेशन लिखा। तो ये जो मेरी पास टर्म थी माइनस लेफ्ट हैंड साइड माइनस एम ओमेगा स्क्वायर सेम है, बीटा सेम है, और इस टर्म को मैंने एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए माइनस टू प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए को इस तरह से लिख लिया। तो ये रहा मेरा मॉडिफिकेशन, मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन, एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर फिफ्थ, दिस इज माय इक्वेशन नंबर फिफ्थ। ओके, अब देखिए साइन थीटा को हम इस टर्म में बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये साइन थीटा का एक्सपेंशन आप इसे कह सकते हैं। साइन थीटा को अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा ओवर 2i। ओके, अब आप जरा ये कीजिएगा कि थीटा की जगह के ए बाई टू लिख के देखिए, थीटा की जगह ये, यहाँ भी थीटा की जगह, यहाँ भी, तो पुट इन प्लेस ऑफ थीटा इक्वल्स टू के बाई टू, के बाई टू को पुट करके देखें तो ये वाली टर्म क्या बनेगी मेरे पास, साइन के ए बाई टू इक्वल्स टू साइन आयोटा आई के ए बाई टू इन प्लेस ऑफ थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एंड इन प्लेस ऑफ थीटा अगेन के ए बाई टू एंड ओवर 2i सेम। अच्छा, 2i की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वाली टर्म फिर से मुझे क्या देगी, एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए बाई टू माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए बाई टू, और 2i की जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो ये टर्म बना 2i साइन के ए बाई टू। ओके, अभी जरा दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो मेरे पास बनी टर्म एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए बाई टू माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए बाई टू टू द स्क्वायर, और जब इस टर्म का स्क्वायर हम करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि 2i साइन ए के बाई टू होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर के बाई टू, और माइनस आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर दैट गिव्स यू -1, that gives you -1, and with this minus this term exponential iota k a by 2 minus exponential iota minus iota k a by 2 to the whole square gives you -4 sin square k a by 2. Okay, -4 sin square k a by 2 in place of this term.
ओके। और जरा इक्वेशन नंबर 5 की राइट हैंड साइड को देखिए, ये टर्म एक्सपोनेंशियल आयोटा के बाई टू माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के बाई टू होल स्क्वायर, इस टर्म की जगह क्या हम ये रिप्लेस नहीं कर सकते? दिस टर्म exponential iota ka by 2 minus exponential minus iota k by 2 whole square is replaced by this term minus 4 sin square ka by 2। तो इस टर्म से हम इस होल स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर सेम है इक्वल्स टू बीटा सेम है, और ये वाली टर्म इस टर्म से रिप्लेस कर दी गई है। सो माइनस आएगा, इस वजह से 4 sin square k by 2 minus is cancelled with minus, and from this equation or from this term we can calculate the value of omega square, okay, and here omega square from this term is 4 beta by m sin square k by 2, and the value of omega from this equation is from this term is positive negative because of this square when changes into the square root, this 4 beta by m sin ka by 2, ओके। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके हम लिख रहे हैं और फिर हम इसको एक इक्वेशन का नाम देंगे, और जो मॉडिफिकेशन है वो कुछ इस तरह का है, एज ओमेगा हैज़ ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, ओके। आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कभी आपने निगेटिव नहीं सुनी होगी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू जब कभी निगेटिव नहीं है तो हम ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है जो हमें दे रहा है पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू पर, प्रैक्टिस में हम केवल ओमेगा की जो वैल्यू स्टडी करते हैं वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज स्टडी करते हैं, ओके। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी -50 हर्ट्स हो गई है ना, तो ऐसा नहीं। तो पॉजिटिव वैल्यू कंसर्न करता है ओमेगा, तो इसको हम केवल पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू लेने के साथ साथ एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो साइन वाली टर्म है ना, साइन के वट एवर द इन द एंगल ऑफ साइन इट ऑलवेज गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ +1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ -1। सो आपको इसको भी मोड में रखना पड़ेगा। रीज़न इज दैट आप ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यू कंसर्न कर रहे हैं, ठीक है। ओमेगा की अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो आपको ये टर्म तो ठीक है, यहाँ से आप पॉजिटिव साइन ले लेंगे, लेकिन साइन को भी आपको पॉजिटिव बना के रखना पड़ेगा। जब ही तो पॉजिटिव बनेगा ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तभी पॉजिटिव रह पाएगी। अगर साइन ने अपनी मिनिमम वैल्यू कहीं किसी कंडीशन में एक्वायर कर ली तो फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निगेटिव हो जाएगी। तो इस कारण इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख रहे हैं, और वो ये है क्योंकि हम ये जानते हैं, ये फैक्ट है कि ओमेगा जो है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 4 जो यहाँ रूट में था, ये वैल्यू 4, इसको हमने रूट से, स्क्वायर रूट से बाहर लेके आए तो ये बने 2। पॉजिटिव नेगेटिव में से हमने एक साइन कलेक्ट कर लिया पॉजिटिव, तो ये बना हमारे पास टर्म 2 स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाई एम एंड मोड ऑफ साइन के ए बाई 2। मोड क्यों लगाया ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो मेरे पास जो टर्म बनी, फाइनल टर्म बनी, जो मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देता है, और ये वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिससे ये पूरा का पूरा जो 1 डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस है वो वाइब्रेट करता है। ये वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओके। सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाई एम एंड मोड ऑफ साइन के ए बाई 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 6। ओके। अब थोड़े से और कुछ मैथमेटिकल हमें एस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं। वो ये हैं कि लेट सी बी द लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस। हमने सी को स्मॉल सी है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस कंसिडर कर लिया, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस है वो मिलती है हमें स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये जो रेशो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस देता है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ सी से। कुछ बुक्स में ये हो सकता है डेल्टा से भी रिप्रेजेंट की गई हो, पर यहाँ हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, जिसको हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस। और लॉन्गिट्यूडनल जो स्टिफनेस है वो मुझे ये रेशो देता है, स्ट्रेस ओवर
स्ट्रेन। चलिए, स्ट्रेस तो एक तरह का फोर्स है, जो जैसे स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स है उसको भी हम स्ट्रेस फोर्स कह सकते हैं, या किसी वायर के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसको भी हम स्ट्रेस फोर्स बोलते हैं। तो ये हो गया F। और स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, चाहे वो स्प्रिंग की हो या किसी वायर की हो। ठीक है, अब जो स्ट्रेस होगा वो हमें पता है फोर्स कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ कंसीडर कर लिया x, क्योंकि वो जो डिस्प्लेसमेंट्स हमने वहाँ कंसीडर किए हैं वो एक्सिस के डायरेक्शन में कंसीडर किए हैं। ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ हमने कहा x जितना डिस्प्लेस हुआ ओवर ओरिजिनल लेंथ जितना वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस, जो देता है मुझे स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और इस तरह से हम जो स्ट्रेस फोर्स है जो हुक्स लॉ मुझे देता है। और एक और बात की हमने यहाँ निगेटिव साइन को नेगलेक्ट किया है, उसका रीज़न ये है क्योंकि हुक्स लॉ तो मुझे कहता है कि जो स्ट्रेस है ना वो माइनस बीटा ओवर एक्स है, लेकिन अगर आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करें, मोड लें इस एफ का, तो हमेशा बीटा एक्स के बराबर आएगा। तो स्ट्रेस को इसलिए यहाँ बीटा एक्स लिखा हुआ है। फोर्स कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? चेंज इन लेंथ के बराबर होगा। मान लीजिए ये पेन है, ये कोई वायर है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। ये मैं कहता हूँ इसको ऐसे, कैप को मैंने हल्का सा ऐसे, ये देखिए, अब ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। और अगर मैं इसको ऐसे चेंज इन लेंथ हुआ तो चेंज इन लेंथ कितना होगा? जितना ये डिस्प्लेस हुआ। तो इस कारण जो चेंज इन लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट के यहाँ बराबर है। और ओरिजिनल किसके लेंथ के बराबर है? जितना एक एटम यहाँ था, एक एटम यहाँ था। तो जो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, यही क्या है? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जो किसके बराबर है? ए के बराबर। ये हमने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो x से कैंसिल हो जाता है और c इक्वल्स टू मुझे मिलता है बीटा ए। यहाँ से हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आ जाएगा c ओवर a, दैट इज द स्टिफनेस ओवर द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस a, या इंटर एटॉमिक स्पेसिंग आप इसे कह सकते हैं। ओके, ये यहाँ से रिजल्ट आया। अच्छा, अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट रो बी द लीनियर मास डेंसिटी, लेट रो बी द लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ हमने कंसिडर कर लिया, और रो को अगर हमें डिफाइन करना है और मास पर यूनिट लेंथ के इस टर्म में हमने डिफाइन करना है, तो आएगा मास ओवर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो m की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी रो ओ। तो एक्चुअली जो इक्वेशन नंबर 6 में इस स्क्वायर रूट में जो दो टर्म थे बीटा और m, इनकी वैल्यू हमने यहाँ से कंसिडर कर ली है। बीटा की वैल्यू है c बाई ए, और रो की जो वैल्यू है वो है m की जो वैल्यू है वो है रो इंटू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ से उठाते हैं, दोनों रिजल्ट्स, और इक्वेशन नंबर 6 में जब पुट करते हैं तो जो रिजल्टेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जो मेरे पास आती है वो कितनी है वो देख लेते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू 2 इज सेम, स्क्वायर रूट द वैल्यू ऑफ बीटा इज c बाई a एंड द वैल्यू ऑफ m इज रो a एंड मोड ऑफ साइन k a बाई 2। सो 2 हियर एंड c बाई रो a स्क्वायर। जब a स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 2 बाई a स्क्वायर रूट ऑफ c बाई रो एंड साइन k a बाई 2, मोड ऑफ साइन a k बाई 2। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना जो स्क्वायर रूट में लिखी है, ये रूट c बाई रो, इसको मैं कह रहा हूँ v नोट। और v नोट क्या है? इज स्क्वायर रूट ऑफ c बाई रो is the velocity of sound, velocity of sound in lattice, and its value is a constant for a given lattice। एक और बात ये कि इसको velocity ही क्यों कंसीडर किया गया है? रीज़न इज दैट अगर इसके आप डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ c की डायमेंशन रखिए, जो c की डायमेंशन कहाँ से मिलेंगे आपको? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन से मिल जाएंगी। ठीक है, और रो की डायमेंशंस रखिए, तो ये जो रिजल्टेंट यहाँ से आपके पास रिजल्ट आएगा ना, ये वेलोसिटी की डायमेंशन देगा आपको। ये स्क्वायर रूट ऑफ c बाई रो, c की डायमेंशन पुट कीजिए, रो की डायमेंशन पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए इस स्क्वायर रूट को, और आपको मिलेगा LT-1, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। That's why this term
root square root of c by rho is termed as the velocity of sound in lattices. तो हमने इस स्क्वायर रूट को यहाँ रिप्लेस कर दिया. ओमेगा इक्वल्स टू 2v नोट बाई a and sin k a by 2 which is always in the mod, because we have only, or we have to use only the positive values of sine. This is my equation number 7. Okay, so equation number 7 gives a relation between omega and k, and this relation is known as dispersion relation. डिस्पर्सन रिलेशन और डिस्पर्शन रिलेशन कर्व. अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे. थोड़े और रिजल्ट्स हमें यहाँ से कैलकुलेट करने, और उसके बाद हम डिस्पर्शन जो रिलेशन कर्व है उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे. एक बात जो मैं यहाँ से देख सकता हूँ वो ये है कि हमने कहा है कि v नोट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ c बाई रो इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लैटिसेस एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन लैटिस. ठीक है, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू इस मोनो एटमिक जो हमारे पास लैटिस दिया है, वन डायमेंशनल मोनो एटमिक लैटिस, इसके लिए कांस्टेंट है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 इज कांस्टेंट, v नोट इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट एंड साइन के बाई 2. हमें रिलेशन देखना है ओमेगा और k के बीच में. तो यहाँ से जो मुझे रिजल्ट आ रहा है ना समझ में, वो ये है कि जो ओमेगा का जो वेरिएशन रहेगा, चूंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है, ये जो मोड से बाहर लिखी हैं ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है. यहाँ से जो मुझे रिलेशन समझ में आ रहा है ओमेगा और के बीच का, वो ये है कि ओमेगा का जो वेरिएशन रहने वाला है ना के साथ, वो साइन वेव की फॉर्म में रहने वाला है. ये साइन वेव की फॉर्म में रहने वाला है, यानी इस तरह से साइन वेव की फॉर्म में रहने वाला है. इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, पर फॉर द टाइम बीइंग ये रिलेशन आप याद रखिएगा कि ओमेगा और के का जो वेरिएशन है, बिल्कुल एक क्लियर वेरिएशन भी आएगा अभी आपको जब हम स्पेशल केसेस को करेंगे डिस्क्राइब, तो एक स्पेशल रिलेशन भी आपको समझ में आएगा. पर इस समय के लिए आप ये रखिए कि ओमेगा का जो वेरिएशन है ना, वो के साथ साइन वेव की फॉर्म में जाएगा. और एक बात इस रिलेशन से और आप समझ के रखिएगा कि ये मोड लगा है साइन के ऊपर, तो जो निगेटिव हाफ साइकिल्स हैं ना, वो यहाँ अपियर नहीं होंगी. केवल जो निगेटिव हाफ साइकिल्स हैं, जो निगेटिव वैल्यूज हैं, ये मोड उनको भी पॉजिटिव में बदल देगा. तो एक्चुअली जो यहाँ वेरिएशन रहने वाला है वो कुछ इस तरह का वेरिएशन होगा. आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ वेरिएशन रहेगा वो कुछ इस तरह का वेरिएशन रहेगा. लेट्स सी दिस. ये यहाँ जो वेरिएशन रहेगा ना वो इस तरह का, अगर मैं इस तरह, अगर इस एक्सिस पे मैं ओमेगा कंसीडर कर लूँ और इस एक्सिस पे मैं के को कंसीडर कर लूँ, तो जो मुझे ये इक्वेशन बता रही है, ये इक्वेशन नंबर 7, ओमेगा और के बीच का जो रिलेशन है वो साइन की फॉर्म में आएगा. तो एक्चुअली ये जो होना चाहिए ये इस तरह वेरी होना चाहिए, इस तरह वेरी होना चाहिए. लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है कि साइन का जो वेव है ना उसके ऊपर मोड लगा है, यानी साइन निगेटिव वैल्यूज नहीं कंसीडर करता है. अगर ये निगेटिव वैल्यू लेता भी है तो भी वो पॉजिटिव वैल्यूज में कंसीडर हो जाएंगी. यानी कि ये जो निगेटिव हाफ साइकिल्स है ना, ये ओमेगा इधर इस जीरो वाले पॉइंट से नीचे आ ही नहीं सकता. ओमेगा इस जीरो वाले पॉइंट के नीचे आ ही नहीं सकता, चूंकि हम ये कंसीडर करके चले हैं पहले कि ओमेगा हैज ओनली पॉजिटिव वैल्यूज. ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तभी हमने मोड लगाया था उसके ऊपर. यानी ओमेगा की जो वैल्यू है ये जीरो वाला पॉइंट है, जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं. इसके नीचे वाली वैल्यूज को कंसीडर, ये वेरिएशन जो के साथ आएगा ये निगेटिव पोर्शन में नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन नंबर 7. तो एक्चुअली जो ओमेगा के साथ के का वेरिएशन होना चाहिए वो कुछ इस तरह का होना चाहिए. अगर मैं फिर से प्लॉट करूं तो इस तरह से ये के की डायरेक्शन है, मान लीजिए ये ओमेगा की डायरेक्शन है. तो जो निगेटिव आएंगी साइकिल्स उनको भी ये मोड किस में बदल देगा, पॉजिटिव साइकिल्स में बदल देगा. ये इस तरह का वेरिएशन रहना चाहिए ओमेगा और के में.
इस तरह का वेरिएशन रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन नंबर 7। और क्लियर अभी वेरिएशन आएगा, और जब हम स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे वो हम वहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन इक्वेशन नंबर 7 से जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती थी वो ये थी कि ओमेगा का जो के साथ वेरिएशन है वो साइन की फॉर्म में होगा, और सेकंड आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर मोड लगा है तो साइन निगेटिव वैल्यूज़ को यहाँ एक्वायर नहीं कर सकता, केवल वो पॉजिटिव वैल्यू तक, और जो अगर निगेटिव वैल्यू वो देता भी है इस मोड के कारण वो पॉजिटिव हो जाती है। अगर इस वेरिएशन को आप देखें ना तो ये बिल्कुल आपको जैसे फुल वेव रेक्टिफायर का, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करते हैं कहीं फुल वेव रेक्टिफायर को, जो तो फुल वेव रेक्टिफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी ही होती हैं। जो आउटपुट आती है ना फुल वेव रेक्टिफायर की, वो साइन वेव को या एसी इनपुट को जो नेगेटिव हाफ साइकिल से उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी कुछ वैसा ही एक रिजेंबल आप इसे कर सकते हैं उस फिगर से। फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो बिल्कुल इससे रिजेंबल करती हैं। हालांकि आगे वहाँ वोल्टेज रेगुलेशन फिल्टर्स यूज होते हैं, तो ये एक कांस्टेंट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाती है, वो खैर अलग डिस्कशन है। पर ये जो वेव फॉर्म है ये बिल्कुल रिजेंबल कर रही है द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया। पर इन दोनों का आपस में यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है और ये हम यहाँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं। सो दिस इक्वेशन नंबर 7 गिव्स मी दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस। ओके, स्पेशल केसेस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, और इसी इक्वेशन के बेस पे मेनली हमारा बेस जो रहेगा वो यही इक्वेशन रहेगा। ठीक है, अब स्पेशल केसेस इस तरह के हैं। क्या है स्पेशल केसेस? फर्स्ट स्पेशल केस इज दैट फॉर लॉन्गर वेवलेंथ लैम्बडा, अगर वेवलेंथ लैम्बडा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लॉन्गर वेवलेंथ लिमिट में हम यूज कर रहे हैं लैम्बडा को, यानी लैम्बडा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अगर लैम्बडा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये इक्वेशन आप पढ़ के आए हैं, जो वेव वेक्टर है के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्बडा। वेव वेक्टर या प्रोपेगेशन वेक्टर, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। अगर लैम्बडा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यानी जो न्यूमरेटर है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो के डेफिनेटली टेंडिंग टू 0 इसकी तरफ अप्रोच करेगा। अगर लैम्बडा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है तो जो वेव वेक्टर है के, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो के की 0 की तरफ अप्रोच करेगा, वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। और ये जो टर्म है ये वाली साइन के ए बाई 2, ये जो टर्म है ना, इसमें जो के ए बाई 2 है, आप अगर लिमिट लगाएं, लिमिट के टेंडिंग टू 0, लिमिट के टेंडिंग टू 0 साइन के ए बाई 2, तो ये जो टर्म देगा ना आपको साइन के एंगल में, जब साइन का एंगल 0 की तरफ अप्रोच करता है, चाहे साइन के एंगल में कुछ भी हो, साइन थीटा, ये लिमिट आपने बहुत खूब स्टडी किया होगा डिफरेंशियल कैलकुलस में। लिमिट्स थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा ऑलवेज गिव्स यू थीटा। तो यही सेम लिमिट अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ इन लॉन्गर वेवलेंथ लैम्बडा, जब लैम्बडा की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हूँ, तो लिमिट्स के टेंडिंग टू 0 साइन के बाई 2 गिव्स यू मी के ए बाई 2, ये वैल्यू देगा मुझे के ए बाई 2। ओके, अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 7 का यूज हम यहाँ कर सकते हैं और इस रिजल्ट को यहाँ से पुट कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 7 क्या है मेरे पास, ये जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ओमेगा इक्वल्स टू 2v नोट बाई ए साइन के ए बाई 2, और मुझे पता है कि लॉन्गर वेवलेंथ लिमिट में साइन के ए बाई 2 की क्या मुझे देगा, के ए बाई 2। तो इस इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं और हम यहाँ से कुछ रिजल्ट एक्वायर करेंगे। वो क्या होंगे, ओमेगा 2v नोट बाई ए, ये मोड के बाहर था, और जो साइन के ए बाई 2 था मोड में, वो मुझे देगा के ए बाई 2। किस वेवलेंथ लिमिट में? लॉन्गर वेवलेंथ लिमिट में, जब लैम्बडा कहाँ टेंड कर रहा हो, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो। लैम्बडा कहाँ टेंड कर रहा हो, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो, तो ये रिजल्ट मुझे वहाँ से मिलेगा। सो ओमेगा इक्वल्स टू 2v नोट बाई ए के ए बाई 2, 2 इज कैंसिल विद 2, a इज कैंसिल विद a, एंड दिस इज v नोट k। ओमेगा इक्वल्स टू v नोट k, एंड लुक एट दिस रिलेशन, ओमेगा इक्वल्स टू v नोट k। इसका मतलब क्या है,
वी नोट तो कांस्टेंट है, तो इस रिलेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट ओमेगा इक्वल्स टू वी नोट के, एंड हैंस बिकॉज वी नोट इज कांस्टेंट देन ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। एक्चुअली ये जो रिलेशन है ओमेगा और के बीच में, इसको और ज़्यादा हम मॉडिफाइड करें तो एक एक्सिस पे इस तरह ये ओमेगा की वैल्यू है, ये निगेटिव नहीं ले सकते हम, के पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है वेव वेक्टर। अच्छा, तो के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए, ओमेगा और के बीच में जो वेरिएशन होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये दोनों तरफ ऐसा वेरिएशन होना चाहिए। ये रिलेशन जो मुझे बता रहा है, ये ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के विच एक्वायर फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ लिमिट, दिस रिजल्ट। okay, and this is my equation number 8 also, this is my equation number 8 also। तो ये वेरिएशन होना चाहिए, ये वेरिएशन अभी दिखेगा आपको डिस्पर्शन रिलेशन कर्व जब हम ड्रॉ करेंगे तब वहाँ ये रिलेशन आपको दिखेगा। ओके, तो इस तरह से हम इन रिजल्ट्स को देख सकते हैं। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 8। ओके, नाउ वी इंटरेस्टेड हियर टू इंट्रोड्यूस यू द टू टर्म, the phase velocity and the group velocity. I hope you previously somewhere studied these two terms, phase velocity, or it is also known as the wave velocity and group velocity. Okay, छोटा सा एक इंट्रो मैं आपको यहाँ दे दूँ कि अगर मेरे पास ये वेव है, ये हो सकता है टाइम का यहाँ एक्सिस लिया गया हो और यहाँ डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस लिया गया हो, या यहाँ टाइम का एक्सिस लिया गया हो, यहाँ एम्पलीट्यूड का एक्सिस लिया गया हो, वटएवर। तो ये वेव जिस वेलोसिटी से किसी मीडियम में आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, जिस भी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, वो वेलोसिटी कहलाएगी फेज वेलोसिटी या फिर वेव वेलोसिटी। मैकेनिक्स में आप बहुत फ्रिक्वेंटली इन दोनों टर्म को स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये दूसरी एक टर्म, ये मेरे पास दूसरी एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी इस वेव की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है। इसकी ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है, ये मेरे पास लो फ्रीक्वेंसी की वेव है, ठीक है। ये इस तरह ट्रेवल कर रही है मीडियम में, तो ये भी वेव जिस वेलोसिटी से आगे की तरफ मीडियम में आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, इस वेव की वेलोसिटी भी क्या कहलाएगी, वेव वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। अब इस वेव की ये जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है मीडियम में, दैट इज वेव वेलोसिटी, और ये जिस वेलोसिटी से मीडियम में ट्रेवल कर रही है, दैट इज आल्सो वेव वेलोसिटी। अगर ये दोनों वेव्स का हम सुपर इम्पोजिशन कर दें, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को यहाँ अप्लाई करें, और ये दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएं, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी ना, उसको हम कहते हैं ग्रुप वेव या सुपर इम्पोजिशन, द रिजल्टेंट ऑफ द सुपर इम्पोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स। ओके, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है। तो फिर ये अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं करेंगी। ये जो ग्रुप ऑफ वेव है ना, अब ये कम से कम दो वेव चाहिए, हो सकता है यहाँ दो से ज्यादा भी हो सकता है यहाँ दो से ज्यादा वेव हों। मैं केवल दो के ऊपर, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दो के ऊपर ही बनता है। तो अब ये अपनी अपनी वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं करेंगी, अब ये एक ग्रुप वेलोसिटी से, जो ग्रुप ऑफ वेव बना है, ये अब एक एनवलप में ट्रेवल करेंगी, और इस एनवलप की जो वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी ग्रुप वेलोसिटी। इस एनवलप की ये जो वेरिएशन आप देख रहे हैं, ये जो वेव है ना, ये वाली वेव है, और ये जो फ्रीक्वेंसी ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो वेव है वो ये वाली वेव है। ऐसा आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के फिनोमेना को स्टडी करते हैं ना, वहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, है ना। ये हो सकता है एमएससी 4th सेम में आपका इंट्रो हो इससे। तो ये ग्रुप वेलोसिटी के साथ, फिर ये ग्रुप ऑफ वेव जो बनता है, ये ग्रुप वेलोसिटी के साथ मीडियम में ट्रेवल करता है, और अपने साथ एनर्जी ट्रांसफ़र भी करता है, अपने साथ एनर्जी का ट्रांसफ़र। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी अपने साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर करती हैं और मोमेंटम को भी ट्रांसफर करती हैं। तो ये भी वही है ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी भी अपने साथ एनर्जी ट्रांसफर करती है मीडियम में। ठीक, वेव वेलोसिटी के साथ ऐसी फिनोमिना नहीं होती। वेव वेलोसिटी, ये वेव जिस वेलोसिटी से मीडियम में ट्रेवल कर रही है दैट इज वेव वेलोसिटी। ये वेव वेव वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से मीडियम में ट्रेवल कर रही है दैट इज वेव वेलोसिटी। लेकिन अगर ये दोनों वेव सुपर इम्पोज कर जाएं, जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसकी वेलोसिटी कहलाती है ग्रुप वेलोसिटी। और ये एनर्जी ट्रांसफर करती है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है ग्रुप वेलोसिटी का कि अपने साथ एनर्जी ट्रांसफर करती है, मीडियम में एनर्जी लेके जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो हम इंट्रो कराने वाले हैं आपका, वो इन्हीं दो टर्म से इंट्रो कराने वाले हैं, ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेज वेलोसिटी। पहले हम आपका इंट्रो करा रहे हैं फेज वेलोसिटी से। ठीक है, फेज वेलोसिटी क्या होती है? सो फेज वेलोसिटी, या फिर आप इसको वेव वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इसको हम वीपी से रिप्रेजेंट करें, वी फॉर वेलोसिटी, पी फॉर फेज। ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय ओमेगा ओवर के। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज द वेव वेक्टर। और ओमेगा की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 8 मुझे कह रही है कि वी नोट के है। इस केस में, किस केस में? लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में। लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में जब वीपी की वैल्यू ओमेगा की जो वैल्यू है वो वी नोट के है, तो वी नोट के यहाँ हमने पुट किया, के से के कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरे पास वी नोट। यानी जो फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई वी नोट के बराबर। ठीक है, अब मैं ग्रुप वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और ग्रुप वेलोसिटी वी जी, वी फॉर वेलोसिटी, जी फॉर ग्रुप, इज गिवन बाई डी ओमेगा ओवर डी के। या फिर आप कह सकते हैं कि वेव वेक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, डी ओमेगा ओवर डी के। यानी ओमेगा की वैल्यू मेरे पास क्या है? वी नोट के। सो डी बाई डी के ऑफ वी नोट के। वी नोट आप जानते हैं कांस्टेंट है, डी बाई डी के ऑफ के होगा 1, तो ये बन जाएगा मुझे वी नोट। तो इसका मतलब क्या है? ये रिजल्ट मुझे क्या बता रहा है? ये रिजल्ट मुझे कह रहा है कि जो फेज वेलोसिटी की वैल्यू है ना, जिस वेलोसिटी से वेव इस लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में ट्रेवल कर रही है वो वी नोट है, और उसी वेलोसिटी से ग्रुप वेव भी ट्रेवल कर रही है, वही ग्रुप वेलोसिटी है, वो भी वी नोट है। इसका मतलब क्या है कि लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में जब लैम्डा इन्फिनिटी को अप्रोच करे, जब वेव वेक्टर 0 को अप्रोच करे, उस रीजन में जो वेव वेलोसिटी होती है वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होती है। और इस कंडीशन में जो मीडियम है जिसमें ये वेव वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी ट्रेवल कर रही है, वेलोसिटी ये वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, वो एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की तरह एक्ट करता है, बिहेव करता है। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम मतलब जिसमें डिस्पर्सिव इफेक्ट ना हो, जहाँ एनर्जी का लॉस ना हो, जहाँ फ्रिक्शन ना हो, जहाँ कोई डिस्पर्सिव फोर्स ना हो, है ना, जहाँ कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो, एयर का फ्रिक्शन ना हो, है ना, उस तरह ये मीडियम बिहेव करता है। जिसमें कब ये मीडियम कैसे बिहेव करेगा? लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में। ये केवल कंडीशन कहाँ है? लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में ऐसे बिहेव करता है मीडियम जैसे एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। और रिजल्ट कहाँ से आया? वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू ग्रुप वेलोसिटी। जितनी ये वेव ट्रेवल करेगी उतना ही ये एनवलप ऑफ वेव उसी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा जो वी नोट के बराबर है। और वी नोट को हमने पहले ही डिफाइन किया है, ये सॉलिड में साउंड की वेलोसिटी है जो कांस्टेंट होता है किसी भी गिवन लैटिस के लिए। ओके, सो ये डिस्कशन था एक रीजन में जो लॉन्गर वेवलेंथ रीजन है। आगे का जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।